मंत्र यही मूल है, क्योंकि जिंदगी कूल है। खट्टे मीठे पल तो आएंगे और जाएंगे, बट हम जब आपकी जिंदगी में आएंगे, मनोरंजन का ढेर सारा खजाना लाएंगे। हम जल्द आ रहे हैं आप जैसे अनमोल दर्शकों के लिए लेकर एक नया टीवी चैनल, जी अनमोल, दिल छू जाए। It is an English summer evening and an elderly man quietly makes his way along a city center street until he is confronted by a girl who attacks him, pushing the 80-year-old to the ground. The unidentified thug spat in his face and left him sprawled on the pavement. The sickening and unprovoked attack was captured on video by a passerby using a mobile phone camera and shared on Facebook. Police are treating the attack as serious malicious wounding, punishable with up to 5 years in prison. The footage shows the girl knocking the Asian man to the ground in Coventry city center last Saturday at 8:30 p.m. She was flanked by 3 men as she continued hurling abuse and spitting on the man. The only person to help, by picking up the victim's turban, approached as the thugs walked away. Detectives have urged witnesses to come forward to help catch the girl. Please subscribe for more news. Why should we be there? Why should we be there? Why should we be there? I just told the girl जो सूरज हम लोग इधर आए हैं हम लोग sorry. You know what I think? Okay. मीडिया का पीपल उनको बोल रहा है Barely. I gotta get out of here, guys. So tell me. Yes. Tell her why should we be there? Basically, we're sitting just outside of the top. We've been all day, basically past 20 or so hours, and then reports have been going live. It just so happens that the situation at the top has come down a bit. We've noticed that the Army has come out of the Taj. They have been sending in ambulances much closer that appear to be picking people up and leaving the Taj. So the situation with the Taj and the possible terrorists inside and hostages seems to be over. That is what authorities were telling us. As we were standing outside talking about that, a large group of people came around. They were chanting, many of them young, smell of alcohol on their breath, frankly. They were standing very, very close, and suddenly it sort of chaos erupted, and they started grabbing us and, pushing, and suddenly they pushed our cameraman backwards and over and feeling very aggressive, and they were kind of yelling at us, why are you reporting this? Why are you reporting this? We're Mumbaikars, is what they said. So there was a certain sense of a bit of a mob mentality just for about 15 minutes. People are getting pretty aggressive, and then police finally moved in after about 5-10 minutes after we fought our way through the crowd and took this sort of crowd of the younger generation and a few people in their late 40s off. And so the scene it's back to what it was before this crowd sort of got raucous and out of control. But that has nothing to do with the scene that's been here and the hostage situation, or at least the situation inside the Taj Hotel that's been going on for the past 22 hours. मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरान शाह के बाज़ार के अंदर, और उस बाज़ार से मुत्तसिल ये एक छोटा सा घर है जहाँ पर इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो तालिबान के ज़ेर इस्तेमाल यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें बारूदी सुरंगों का सामान भी है और उसके अलावा पोस्टर्स लगे हुए हैं, और उसके अलावा यहाँ पर लिटरेचर भी मौजूद है जिसमें जहन साजी के हवाले से जो नए आते थे जंगजू बनने के लिए। हफ्ते की सोबाड़ा के इलाके मलिक तीन खेल में गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने शिद्दत पसंदों के ठिकाने को निशाना बनाया। सरकारी जराये के मुताबिक शेलिंग से 2 शिद्दत पसंद मारे गए जबकि 5 जख्मी हो गए। शिद्दत पसंदों ने एक सरकारी स्कूल की इमारत पर कब्जा करके उसे अपना ठिकाना बना रखा था। दूसरी तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ ज़रबे अज़्म कारी साबित हो रहा है। ISPR के तर्जुमान के मुताबिक मीरान शाह के मुज़ाफ़ाती इलाके कुतुब खेल में दहशतगर्दों की 3 और पनाहगाहें तबाह कर दी गई हैं।
कार्रवाई में गनशिप हेलीकॉप्टर्स, तोपखाने और निशाना बाजों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई में मुतादिद गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक और असलहे का बड़ा जखीरा तबाह कर दिया गया। तर्जुमान ISPR के मुताबिक 3 मकामी अफराद को शनाख्ती दस्तावेज न होने और 24 मशकूक अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ ज़रबे अज़्ब कारी साबित हो रहा है। ISPR के तर्जुमान के मुताबिक मीरान शाह के मज़ाफ़ाती इलाके कुतुब खेल में दहशतगर्दों की 3 पनाहगाहें तबाह कर दी गईं। कार्रवाई में गनशिप हेलीकॉप्टर्स, तोपखाने और निशानाबाजों ने हिस्सा लिया और उनको यहाँ ज़हन साजी के लिए और उनकी ज़हनी तरबियत के लिए जो है उनको यहाँ पर तैयार किया जाता था। उस हवाले से भी यहाँ पर लिटरेचर मौजूद है। और जब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको कैप्चर करना शुरू किया इस इलाके को, तो ये यहाँ से भाग गए और इस इलाके को इसी तरह खुला छोड़ दिया उन्होंने। मीरान शाह के अंदर ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक बारूदी सुरंग बनाने वाली ये एक बड़ी फैक्ट्री है जिसके मुख्तलिफ कंपार्टमेंट बनाए गए। यहाँ ये सिलेंडर खाली रखे गए हैं जिनमें पहले बारूद भरा जाता है। बारूद भरने के बाद इन सिलेंडरों को आगे लाकर मज़ीद इनके अंदर जो है डेटोनेटर्स और जिसमें RDX और TNT पाउडर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर इनको पैक करके फिर अगले मरहले में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल पीछे जो है मुकम्मल तौर पर तैयार सिलेंडर पड़े हुए हैं जिनको सिर्फ डेटोनेटर लगाने की एक जगह छोड़ी गई है। और जैसे ही ये तैयार होते हैं तो इनको डेटोनेटर्स लगाकर फौरी तौर पर गाड़ियों के अंदर इनको पैक किया जाता है और फिर वो गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों के लिए, शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों के लिए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मौजूद हूँ मीरान शाह में ETIM के हेडक्वार्टर्स के अंदर, जहाँ पर जब ग्राउंड फोर्सेस ने जहाँ पर इसको कैप्चर किया है तो फिर उसके नतीजे में जो यहाँ से चीज़ें बरामद हुई उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बेतहाशा असला जो है और मुख्तलिफ नौइयत का असला जो है वो यहाँ पर और हर किस्म का, जिसमें मिज़ाइल से लेकर बड़ी एंटी एयरक्राफ्ट बुलेट्स और उसके अलावा दीगर आछी असला और दीगर ऑटोमेटिक वेपन जो है वो इस वक्त मौजूद है। और इसके अलावा जो फॉरेन करेंसी खसूसी तौर पे अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो बड़ी भारी मिकदार में यहाँ से बरामद हुई है। इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम बात थी वो ये थी कि यहाँ पर जो लिटरेचर है इस वक्त, जो हतीन जो कि अलकायदा का एक मुस्तकिल मैगज़ीन है जो कि तवील अरसे से पब्लिश होता आ रहा है, उसकी कापियाँ यहाँ पर निकली। और उसके अलावा दावत जहाद के हवाले से मुख्तलिफ किताबें जो कि लिखी गई मुख्तलिफ उलमा की जानिब से, अब वो सामने आई। यहाँ पर एक और गर्दी का बाजार है कि यहाँ दहशतगर्द तंजीमों ने IEDs, खुदकुश जैकटों की तैयारी और दहशतगर्दी को बाकायदा कारोबारी सनद का दर्जा दे रखा था। IEDs फैक्ट्री में बारूदी मवाद से भरे 225 तैयार सिलेंडर मौजूद थे। इस फैक्ट्री के बेसिकली 4 प्रोपोर्शन हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको गैस सिलेंडर्स नजर आ रहे हैं जो कि फिल्ड विद एक्सप्लोजिव हैं। इस एक्सप्लोजिव के अंदर TNT और RDX यूज किया जाता है। अगर बैक साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर इन्होंने सुराख रखा हुआ है, ये यहाँ पे डेटोनेटर फिक्स करके इसको ब्लो करने के लिए यूज किया जाता है। फैक्ट्री में IEDs तैयार करने के लिए दरकार आलात की भी कोई कमी ना थी। यहाँ पे एम्प्टी सिलेंडर्स लेके आते हैं। यहाँ पे वेल्डिंग प्लांट यहाँ पे मौजूद है, अवेलेबल है इनके पास। कटिंग का सारा सामान अवेलेबल है। इसके अंदर सिलेंडर्स को कट करके और एक्सप्लोजिव फिल किया जाता था। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब शुरू हुआ तो दहशतगर्दी का तैयार माल छुपाने की कोशिश भी की गई। बड़े हॉल के एक हिस्से में की गई खुदाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम से कम दर्जन भर अफराद ने ये नाकाम कोशिश की। दे वांटेड के ये जो सिलेंडर हैं इनको हम इसके अंदर हाइड कर दें और बाद में जो है ना वो फिर अपना काम शुरू कर सकें। लेकिन बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑपरेशन आर्मी जो है ना वो जल्दी पहुंच गई और उनको टाइम नहीं मिला। पाक फौज ने मीरान शाह का कंट्रोल हासिल करके पाकिस्तान को दहशतगर्दी की सैकड़ों वारदातों से बचा लिया है, जबकि मीर अली, दत्ता खेल, गुलाम खान समेत शुमाली वजीरिस्तान के बड़े हिस्से में ये मिशन अभी मुकम्मल किया जाना है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, मीरान शाह, शुमाली वजीरिस्तान।
ڈی جی آئی ایس پی آر آصم باجوہ نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان کے قبائل نہیں چاہتے کہ دہشت گرد ان کے علاقے میں واپس آئیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصم باجوہ نے یہ بات ٹویٹر پیغام میں کہی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں رہنے والے قبائلی نہیں چاہتے کہ دہشت گرد ان علاقوں میں دوبارہ آئیں۔ پاکستان بطور ریاست بھی دہشت گردوں کو واپس آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عضب کامیابی سے جاری ہے۔ Adopt your procedures and go ahead. دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب جاری ہے۔ کچھ مقامات پر دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کو مزاحمت کا بھی سامنا ہے۔ یہ یہاں پہ ان کا ایمونیشن ڈمپ تھا، جس سے جب فائر ہوا ہے نا تو اس کے بعد وہاں پہ بلاسٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ میرن شاہ اور بویا گاؤں میں دہشت گردوں نے شدید فائرنگ کی اور پھر پاک فوج نے انہیں جیٹ طیاروں سے بمباری کر کے نشانہ بنایا۔ بمباری سے دہشت گردوں کے 5 ٹھکانے، غاریں اور اسلحہ و گولہ بارود تباہ ہو گیا۔ Okay, adopt your procedures and go ahead. اس کارروائی میں درجنوں دہشت گرد مارے گئے، جن میں زیادہ تر ازبک تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں دہشت گردوں کی بچھائی گئی بارودی سرنگوں کی صفائی کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ ہفتے کی صبح بارودی سرنگ کے دھماکے سے ایک اور جوان شہید ہو گیا۔ دلچسپ بات کہ جو صحافیوں کے حوالے سے جو ہے وہ فتوے بھی لیے گئے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے مختلف علماء سے۔ دہشت گردوں کے خلاف ضرب عضب کاری ثابت ہو رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کے ترجمان کے مطابق میران شاہ کے مضافاتی علاقے قطب خیل میں دہشت گردوں کی 3 پناہ گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ کارروائی میں گن شپ، ہیلی کاپٹرز، توپ خانے اور نشانہ بازوں نے حصہ لیا اور 12 غیر ملکی دہشت گرد ہلاک کر دیے اور اسلحے کا بڑا ذخیرہ تباہ کر دیا۔ ترجمان آئی ایس پی آر کے مطابق 3 مقامی افراد کو شناختی دستاویز نہ ہونے اور 24 مشکوک افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ پاک فوج نے میران شاہ کا کنٹرول حاصل کر لیا تو بدھ 9 جولائی کو آئی ایس پی آر نے میڈیا کو علاقے کا دورہ کرایا۔ محلوں اور بازاروں میں گھومے تو ایسے لگا جیسے یہ میران شاہ بازار نہیں بلکہ دہشت